में मेरा तजर्बा है, हम लोग हर जगह पे पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। सो वी वेंट फॉर सम ऑटोनॉमस प्रोसेस। वैसे ही टोबैको कंट्रोल में भी हमारे पास कुछ ऑटोनॉमस प्रोसेस इस्टेब्लिश करने चाहिए जो मैंडेटरी हो। एडिक्शन सेंटर्स में बहुत उल्टी खबरें बहुत आती हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में। मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूज़ में। क्या हम वहाँ कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬੰਦ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ NGO ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ NGO ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਵੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ NGO ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਊਗਾ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000-2000 ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਪੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ क्योंकि पैसे इन्ने लगते नहीं पहला, और ये जड़ आ, ये शुरू होने के बाद फिर अगे नशे इस तो बाद ही चले। आज पंजाब के सभी ज़िलों से जो सिविल सोसाइटी NGOs वाले लोग हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारी पंजाब स्टेट में हम कैसे टबैको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 13% लोग पंजाब के जो 15 साल से ऊपर हैं वो टबैको का इस्तेमाल करते हैं। सो लगभग ये 26 से 27 लाख लोग टबैको का इस्तेमाल करते हैं।
और ये किसकी ज़िम्मेदारी है बेसिकली, ये हमें बहुत समझना पड़ेगा कि क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ही ज़िम्मेदारी है। इस मीटिंग में यही जो चर्चा हो रही है कि कैसे सभी लोग, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, चाहे वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, कैसे वो सभी लोग अपना अपना योगदान दे सकें, और ये ज़रूरी भी है। यदि हमें अपने स्टेट में इसको टबैको फ्री बनाना है, जैसा कि वो चर्चा हो रहा है कि हम पंजाब को 2030 तक टबैको फ्री करेंगे, या हम 2000 जो भी वो अभी डिसीज़न लेंगे, तो कैसे सभी लोग इकट्ठे मिलके वो कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, जब तक टबैको कंट्रोल गांव-गांव नहीं पहुंचेगा, गांव-गांव जो जब धूम्रपान मुक्त नहीं होंगे, टबैको फ्री विलेजेस नहीं होंगे, तब तक ये एक बहुत ही बड़ा एक मुश्किल काम है। इसी की चर्चा हो रहा है आज। तो मैं पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा चर्चा हो रहा है यहाँ। आपको क्या लगता है कि सरकार के सहयोग से, हेल्थ के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से, या फिर चलान से? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बोला है, अवेयरनेस जनरेशन जो होती है, लोगों को जागरूक करना, वो एक अपना एक एस्पेक्ट है जो कि सभी प्रोग्राम्स में, कोई भी जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है, रोड सेफ्टी प्रोग्राम है, अवेयरनेस जनरेशन तो लोगों को करना ही है। साथ में टबैको कंट्रोल में एक लॉ भी है, पॉलिसीज़ भी हैं। जब तक उसको हम लागू नहीं करते, जैसा कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट बीड़ी पीने से रोकना, जैसे कि कोई भी बच्चा जो है टबैको को 18 साल से कम कोई व्यक्ति टबैको वो ना उसको बेचा जाएगा, ना वो बेचेगा। उसके अलावा जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके चारों तरफ कोई भी टबैको बिकना नहीं चाहिए है, कोई भी टबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। ये लॉ है। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या पुलिस का क्या रोल है, बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है। जो कोटपा है उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का कोई ना कोई जो रोल है, एंड पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ मेजर रोल along with डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, रूरल डेवलपमेंट। इवन गांव में भी देखो, हमारा टबैको कंट्रोल लॉ में इवन गांव का जो प्रधान है, क्या हमारे पंजाब में सरपंच जिसको बोलते हैं, या पंचायत सेक्रेटरी है, उसको भी चलान करने की अथॉरिटी लॉ ने दी हुई है कि यदि गांव में हमारे को टबैको यूज़ पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करता है, तो गांव का प्रधान भी उसको 200 रुपये तक जुर्माना कर सकता है। क्या ये हो रहा है? यही है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, सभी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जब तक वो काम नहीं करेंगी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है। सर, कोई इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह? कि बच्चों में 3 चीज़ें आती हैं। 1 इज़ स्कूल ड्रॉप आउट, 2nd इज़ उनका आता है कि वो पीयर ग्रुप में आ जाते हैं, तो 3rdly वो क्राइम पे आ जाते हैं। आज तक हमने देखा दिस इज कोरिलेशन, इंटॉक्सिकेशन, ड्रॉप आउट एंड CCL, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो चंडीगढ़ जैसे सिटी में एक बार DC साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। हमने कहा कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, आई नीड टू टेल द ऑनरेबल पर्सन सिटिंग ओवर हियर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, बच्चे बताते हैं जी हमें कि कहाँ हमें मिलता है नशा। ये हमारे स्टूडेंट मेरी बात को बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ही नोज बेटर देन मी टू, कि वो जो सारा दिन डील करते हैं, वो कहते हैं कि फलां जगह से मिलता, 17 में यहाँ बस निकलती है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे देते हैं। 17 की मार्केट के अपोजिट यहाँ पे वो नूडल्स वगैरह वगैरह होती हैं, दे हैव 1 person बिहाइंड दैट, वो सर्व भी करता लेकिन पीछे मिलता भी है। मेरा कहने का मतलब है वो बच्चे ही बेचते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन आर बीइंग मेड कोरियर्स टू स्प्रेड दिस डिजीज। तो इसके लिए हमें सबको मिलके, जिसमें हम भी शामिल हैं, एक बहुत ही संजीदा एफर्ट की यहाँ ज़रूरत है। वहाँ रीच आउट करने की ज़रूरत है। स्कूल्स जो है, एजुकेशन सब कुछ बदल सकती है, मुझसे पूछिए
जो बच्चा क्राइम में आ जाता है उसको स्कूल वाले निकाल देते हैं, कहती हैं कि वो हमारा स्कूल का तो रेपुटेशन खराब होता है। वेयर एज दे कैन नॉट स्टॉप ए चाइल्ड, यू नो, दिस इज उनका राइट, फंडामेंटल राइट है जो एजुकेशन लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए ये जो हमारे बच्चे नशे करते हैं, क्राइम में आगे जाके जाते हैं, जैसे मैंने कोरिलेशन की बात आप सबको बताई है, वो हमारे समाज के ही बच्चे हैं। डिस्कार्ड कर देंगे तो वापस, जैसे होता है ना, पुश करेंगे तो वापस जगह हमारे पास ही आएगी। तो आई थिंक, मेरे को लगता है टाइम ज़्यादा ले लिया हो, तो मेरी ये सबको रिक्वेस्ट है कि जहाँ डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे हम भेजते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ भी काफ़ी मुश्किल होता है। कई पेरेंट्स कहते हैं जी आप होम में रख लो, वहाँ तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ अवेयरनेस ड्राइव आती है, अगर कोई पॉइंट आपका मेंबर नोट कर रहा है आपकी इस सभा का, ये भी करिए कि डी एडिक्शन सेंटर भी होने चाहिए। थर्डली, जो स्कूल निकालते हैं बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ दिस के दे आर इनटू क्राइम, उनको थोड़ा सा कहिए प्रिंसिपल की मीटिंग कर, हमें बुला लीजिए, नो इश्यू। तो इसीलिए ये जो बातें हैं, हम कहते हैं कि ग्राउंड से ले, ब्रांचेस को काट के जब तक जड़ की आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसका समाधान नहीं होता है। स्टिल लिसन टू यू, तो आप उनको बोले कि जरा बच्चों को बचाओ, क्योंकि एक बार जब लत लग जाता है, एक तो चीज है कि टबैको इट इज अ गेटवे ड्रग। ये जो चिट्टे विट्टे की आप बात करते हैं, शुरुआत सब टबैको से ही करते हैं। सो अगर टबैको पे आप अगर पकड़ कर लोगे ना तो शायद चिट्टे तक नौबत नहीं आएगी। सो आई थिंक ये जो पुलिस को ना आप ये जरूर सस्पेंड करें। थैंक यू। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।